30,000, 55,000. Asset side, asset side, machinery 3 lakh 10,000, 4 lakh 20,000. Buildings 2 lakhs, 2 lakhs. Investment 30,000, 80,000. Stock 1 lakh 80,000 and 2 lakhs. Cash balance nil and 15,000. Debtors 60,000, 1 lakh 60,000. Discount on debentures 10,000, 5,000. 10,000 and 5,000. Total 7 lakh 90,000, 10 lakh 80,000 for both sides. 790 and 1080. Okay. नीचे लिखो. You are informed that first preference shares were redeemed at a premium of 5%. At a premium of 5%. Dividend at the rate 15%. Dividend at the rate 15% was paid on equity shares. Was paid on equity shares. Third, the provision for depreciation. The provision for depreciation against machinery at rupees 150, 1,50,000 on 31st December 2013 and at rupees 1,90,000 and at rupees 1,90,000 on 31st December 2014. Fourth, in the year machine costing rupees 70,000, book value rupees 40,000, book value rupees 40,000 was sold for rupees 25,000. Was sold for rupees 25,000. Okay. प्रॉब्लम लिखकर हो गया है क्या? हेलो हेलो प्रणीता, प्रॉब्लम हो गया क्या लिखना? प्रणीता, नेहा. सर एडिशनल बाकी 1 मिनट. ओके सर एडजस्टमेंट. ओके ओके लिख लो. आप एडजस्टमेंट लिख लो, तब तक मैं प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करता हूँ. देखिए, प्रॉब्लम दिया गया है आपको लक्स कंपनी लिमिटेड का, और आपको कहा गया है कि प्रिपेयर्ड फंड फ्लो स्टेटमेंट. इंफॉर्मेशन गिवन है शेयर कैपिटल. वहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है 3 lakhs and 3,50,000. It means there is a issue of equity shares. Okay. Then preference share capital दिया है 2 lakhs and 1 lakh. It means that there is a redemption of preference shares. Debentures दिया है 1 lakh and 2 lakh. It means that this is issue of debentures. Will take into the sources of fund. Profit and loss account का balance दिया है 1,10,000 and 2,70,000. Will take into the funds from operation.
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, ये करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर्स करंट लायबिलिटी है, और बिल्स पेएबल करंट लायबिलिटीज है. All these three items of current liability will consider in statement showing changes in working capital. Then machinery है 3,10,000 and 4,20,000, and there is also adjustment on the machinery with accumulated depreciation balances. So here we should be prepared to accounts, machinery accounts, and provision for doubtful debts account. ठीक है ना, provision for depreciation account, sorry. एंड देन बिल्डिंग दिया गया है 2 लाख, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी नहीं है और वहां पर बैलेंसेस में भी कोई चेंजेस नहीं है. ओके. देन इन्वेस्टमेंट है 30,000 एंड 80,000. इट मींस देयर इज अ परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट विल टेक इनटू द सोर्सेस ऑफ फंड. स्टॉक दिया गया है 1,80,000, 2 लाख. इट इज अ करंट सेट. कैश बैलेंस है करंट असेट. Debtors है current assets. All these three items will be appear in the statement showing changes in our working capital. After that there is a discount on debentures है, तो वहाँ पर 10,000 and 5,000 है. It means that 5,000 are write off, है ना, against discount on debentures. So this item will appear in the funds from operations as a non-operating loss. After that you have asked, you have given additional information. Preference shares were redeemed at premium of 5%. Preference shares जो हमने redeem किया है वो प्रीमियम पे रिडीम किया है, इसका मतलब वहां पर हमें लॉस हुआ है 5% का. प्रीमियम दिया है इसका मतलब हमने जो देना था उसके उससे ज्यादा दिया है ना. तो वहां पर हमने 1 लाख के शेयर कैपिटल रिडम्पशन किया है, तो उसके अगेंस्ट 5% प्रीमियम भी दिया है. तो 1,05,000 वहां पर हमारा जाएगा एप्लीकेशन में, और 5,000 जो है हमारा जाएगा एडजस्टेड फंड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को. ओके, तो एंट्रीज उसकी हो जाएगी. देन डिविडेंड है 15% वॉज पेड ऑन इक्विटी शेयर्स. इक्विटी शेयर्स हमने हमारे कितने वो देखना होगा 3 लाख से प्रीवियस ईयर के, और पेड जो होता है वो प्रीवियस ईयर के ऊपर ही होता है. तो हमें 15% देना है 3 लाख के, तो वो हो जाएगा हमारा 3 लाख के ऊपर 15% मीन्स 45,000. उसके दो इफेक्ट हो गए, एक तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में होगा और दूसरा इफेक्ट होगा एप्लीकेशंस में. Then the provision for depreciation again machinery at rupees 150 on 31st December 2013 and rupees 190 for 14. So separate ledger account will be prepared for this adjustment as provision for depreciation account, है ना, with machinery account. In the year machine costing rupees 70,000, book value rupees 40,000 was sold for rupees 25,000. यहाँ पर 70,000 की मशीनरी थी, 40,000 को सोल्ड की है, बुक वैल्यू है उसकी, और 25,000 को सोल्ड की. तो इसका मतलब वहां पर हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा. डेप्रिसिएशन कितना होगा फिर, 70,000 की मशीनरी थी, बुक वैल्यू 40 है. इट मींस देयर इज अ 30,000 accumulated depreciation, and this will appear in the machinery account and transfer to the provision for depreciation account. Okay, and after that we'll take or calculate the profit or loss, and we'll take the entries according to the transactions. Okay, हेलो, क्या प्रॉब्लम शुरू करने का सॉल्व करना है, शुरू करना है सॉल्यूशन? Yes, sir. Okay, so prepared first of all statement showing changes in working capital बनाओ. आपको बाकी आवाज भी आ रही है क्या? बाकी आवाज आ रही है? आ रही है सर, थोड़ी थोड़ी आ रही है, चलेगा. हाँ, तो उसके ऊपर ध्यान मत दो, हमारा जो है उस पे उसके ऊपर ही कंसंट्रेट करो. स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाओ. पहले तो हम बनाएंगे, पहला आइटम हमारा होगा करंट असेट्स. कैन से
ये स्टेटमेंट बनाने के बाद में मुझे बोलो, एक एक करके हम वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स ले लेंगे। यहाँ पर स्टॉक है, कैश है, कैश बैलेंस है और डेटर्स है। ये तीनों जो है हमारे करंट असेट्स है। ये तीनों ही हमारे करंट असेट्स है। टोटल करंट असेट्स 2,40,000, 3,75,000. बाकी सबका होने दो। $2,40,000 and 3,75,000 आई थिंक है ना। 375 है क्या? Yes, sir. उसके इफेक्ट्स देखेंगे वर्किंग कैपिटल्स पे क्या हुआ है। स्टॉक है 1,80,000 और 2 लाख, इसका मतलब वहां पर स्टॉक में इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज इन करंट असेट मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, सो देयर वी राइट 20,000 एज अ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट आइटम है कैश बैलेंस, वो भी इंक्रीज हुआ है, तो इंक्रीज इन करंट असेट मींस इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। डेटर से वो भी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब तीनों आइटम हमारे इंक्रीज के हैं करंट असेट्स। 1 लाख से इंक्रीज हुआ है, तो इधर आएगा फ्लैश फ्लैश। ओके, after that take current liabilities down, current liabilities करंट लाइबिलिटीज कौन सी गिवन है प्रॉब्लम में, देखो वहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है, क्रेडिटर्स है एंड बिल्स पेएबल है। दिस थ्री आर करंट लाइबिलिटीज है ना। ये तीनों करंट लाइबिलिटीज है हमारे प्रॉब्लम में गिवन। इसके बैलेंसेस डाल दो यहाँ पर फिगर्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है 10,000 and 15,000, creditors है 40,000 and 90,000 and bills payable है 30 and 55,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स वहां पर इंक्रीज हुआ है। जब लाइबिलिटीज में इंक्रीज होता है उसका मतलब हमारे वर्किंग कैपिटल पर क्या असर होगा, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितने से डिक्रीज होगा? हेलो हेलो, आवाज आ रही है ना? 5,000. हाँ बोलना है बेटा। 5,000। आफ्टर दैट क्रेडिटर्स 40,000 and 90,000, यहाँ पर भी इंक्रीज हुआ है, इसका मतलब हमारा वर्किंग कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। 50,000 से डिक्रीज होगा। क्रेडिटर्स कितना है? 50,000। ओके, आफ्टर दैट बिल्स पेएबल, ये भी इंक्रीज है, इसका मतलब वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होगा। कितने से होगा? इट विल बी डिक्रीज 25,000. 25,000। ओके, राइट हियर टोटल करंट लायबिलिटीज, या हम इसे कहेंगे बी। इसकी टोटल करो, कितना आता है? 80,000. एंड इसका टोटल करो, कितना आता है बोलो? 1,60,000. 160। ओके, राइट। आगे क्या है? वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। दोनों का हमने यहाँ पर एडिशन किया है। करंट असेट भी है और करंट लायबिलिटीज भी है। पहले तो 2013 का कैलकुलेट करो, 240
माइनस 80, यहाँ पर लिखो ए माइनस बी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज कितना आएगा? 1,60,000. 1,60,000. ओके, 2,15,000. 215, right. Okay, what happened here? It is increased or decreased with compared to Increase. the previous year? It is increased. Increase in working capital. How much the amount? Amount is 55,000. 55,000. Okay, तो टैली करो उसे. 215, 215 इंक्रीज हुआ है तो डिक्रीज के कॉलम में देखो यहाँ पर 55,000, 55,000 और इसका टोटल करो कितना आता है, इसका टोटल करो कितना आता है? 1,35,000. 1,35,000 बोथ. ओके, यहाँ तक तो आपकी पूरी समझ में आया ही होगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम हुए हैं और मुझे नहीं लगता कि किसी को भी यहाँ पर स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैलकुलेशन में दिक्कत होगी. आई डोंट थिंक सो. है कोई ऐसा कि जिसे स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने नहीं आएगा, बनाते नहीं आएगा? ऐसा है कोई? कोई भी नहीं होगा ऐसा, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है. वो करते हैं नेक्स्ट पार्ट. तो हमें वहां पर बनाना है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन एंड फंड्स फ्लो स्टेटमेंट्स, और उसके साथ में 2-3 अकाउंट्स और बनाने हैं वर्किंग्स में. यहाँ पर इतने सारे अकाउंट बनेंगे. पहले तो हमें बनाओ यहाँ पर फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन. हेलो नेहा, विद्या, आपको बात करनी है. प्रियंका, बताना है क्या प्रॉब्लम में गिवन है इंफॉर्मेशन. ओके, निकिता, प्रशिक. Yes, sir. प्रशिक, Yes, sir. Yes, sir. okay. So move on to the next part of the solution, that is calculation of funds from operation and fund flow statement. Funds flow statement. So prepared the formats. फॉर्मेट बनाओ पहले, और बस उसके बाद में हम देखेंगे क्या होगा इफेक्ट्स. और फास्ट बनाओ थोड़ा. पहले हमारा थोड़ा लेट हुआ था, तो टाइम बहुत कम है हमारे पास. बताओ अभी. देखो यहाँ पर क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख एंड 3,50,000. क्या हुआ है यहाँ पर? 3 लाख एंड 3,50,000 है इक्विटी शेयर कैपिटल. इसका मतलब क्या हुआ? What happened here? Issue. We issued some shares of equity shares. Okay, we issued here some equity shares. So write down in sources of funds. Sources of funds. Issue of equity shares. कितना इशू किया है? 50,000. उसके ऊपर एडजस्टमेंट भी है, लेकिन एडजस्टमेंट सिर्फ हमारी डिविडेंड के लिए है, तो हमें डिविडेंड कैलकुलेट करते समय हम वो उसके ऊपर फोकस करेंगे. अभी तो 50,000 यहाँ पर हमारा इशू हुआ है, वो हमारा सोर्स बन जाता है. ये बाद में क्या है देखो, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2 lakhs and 1 lakhs, and there is adjustment of preference shares were redeemed at 5% प्रीमियम, है ना. 5% प्रीमियम के ऊपर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए हैं, तो उसके लिए सेपरेट अकाउंट बनाओ, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट. Debit balance will be appear in the credit side. Opening balance will be appear in the credit side. So write down here.
बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है प्रीवियस ईयर का बैलेंस प्रेफरेंस शेयर्स का? आई थिंक इट इज 2 lakhs। 2 lakh, हाँ, करंट ईयर कितना है? 2 बैलेंस कैरी डाउन। कितना है बैलेंस देखो जल्दी जल्दी। 1 lakh. 1 lakh। सो राइट हियर 1 lakh। 1 lakh। अब क्या हुआ है वहां पर? रिडम्पशन किया है प्रेफरेंस शेयर्स का। कितना किया है? 1 लाख का किया है, लेकिन उसके ऊपर 5% जो है हमने प्रीमियम दिया है, तो हो गया हमारा लॉस। तो हो जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को अकाउंट। कितना आएगा वो? 5% है। 1 लाख हमने रिडीम किया है, तो 5% कितना आएगा? 5000 है ना। इसे कहेंगे हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ब्रैकेट में लिखो ये। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ओके, ये प्रीमियम कहाँ पर जाएगा? दूसरा इफेक्ट उससे वो हो जाएगा हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हो जाएगा हमारे यहाँ पर एड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इसमें जाएगा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स। रिडम्पशन ऑफ शेयर्स प्रेफरेंस शेयर्स को क्योंकि हमने प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम किए। प्रेफरेंस शेयर्स इसकी अमाउंट कितना है बेटा? 5000। ओके, से क्लोज कर दो। अब क्लोज कर दो। क्लोज कितने से होगा? 2 lakhs 5000 से होगा। जो डिफरेंस आएगा उसे क्या कहेंगे हम? टू कैश। टू कैश कितना आएगा? 1,05,000। कैश अकाउंट 1,05,000। ये होगा हमारा बैलेंसिंग फिगर। तो ये हमारा एप्लीकेशन है ना, क्योंकि ये जो अमाउंट की है रिडीम की वो हमें फंड फ्लो एनालिसिस में कहाँ लिखनी है? एप्लीकेशंस में। वहाँ पर लिखो बैलेंसिंग फिगर redemption of preference shares on premium। एप्लीकेशन को जाएगा वो, एप्लीकेशन में लिखो। यहाँ पर जगह छोड़ दो और यहाँ पर लिखो एप्लीकेशन ऑफ वहाँ पर लिखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ऑन प्रीमियम। कितना होगा? 1,05,000। समझ में आया ये प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल की एडजस्टमेंट? हेलो, Yes sir। आपको? Yes sir, yes sir। Okay, so move on to the next item, that is debentures। debentures क्या हुआ यहाँ पर देखो? 1 लाख है, 2 लाख हुआ,
इसका मतलब वहां पर इशू हुआ। देखो इशू हुआ। इशू ऑफ डिबेंचर्स कहाँ पर जाएगा? सोर्सेस ऑफ फंड, सोर्सेज ऑफ फंड्स। इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स कितना है? द अमाउंट इज रुपीज 1 लाख। 1 लाख। आगे है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, वो कहाँ पर जाएगा? करंट ईयर का कितना है? 270 माइनस प्रीवियस ईयर का कितना है? देखो 1,10,000। 1,10,000 है, कितना आएगा? 160। यस। So what is the next item? ये हमने कंसिडर किया स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में, क्रेडिटर्स भी कंसिडर किया स्टेटमेंट शोइंग चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बिल्स पेबल वी हैव ऑलरेडी कंसिडर इट, देन मशीनरी अकाउंट। So मशीनरी 3,10,000 and 4,20,000 है। मशीनरी को ऊपर एडजस्टमेंट भी है, तो दोनों वहाँ पर लेजर बनाओ। Prepare two ledgers, one is for machinery, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस जाएगा डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस में हम क्या क्या लिखेंगे? जो हमारी बैलेंस शीट की वैल्यू है वो तो लिखने ही वाले हैं, उसके साथ साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की अमाउंट भी है, उसके साथ ओपन होगा वो 3,10,000 एंड 1,50,000। 3,10,000 प्लस 1,50,000 और यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस भी हम उसी प्रकार लिखेंगे। बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना लिखेंगे हम वहां पर? कितनी अमाउंट मशीनरी की? 420 प्लस एडजस्टमेंट में कितना है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखो 1,90,000। 1,90,000। तो लिखो वहां पर 1,90,000। मशीनरी का लिखा हमने, तो देखो वहां पर मशीनरी की ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है वो हम देखेंगे और उसके बाद में डेप्रिसिएशन के बारे में चर्चा करेंगे। डेप्रिसिएशन एक और अकाउंट भी बनाना है हमें, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी अकाउंट। ओके, तो बाद में डिस्कस करेंगे हम। पहले तो मशीनरी का देखते हैं हम। मशीनरी के ऊपर क्या एडजस्टमेंट है? इन द ईयर मशीन कॉस्टिंग ₹70,000, बुक वैल्यू ₹40,000 है ना। In the year, machine costing ₹70,000, book value of ₹40,000 was sold for ₹25,000। 70,000 जिसकी बुक कॉस्ट थी वो बुक वैल्यू वाली 40,000 की मशीनरी हमने सोल्ड की 25,000 को। उसका मतलब 70,000 था कॉस्ट, लेकिन 40,000 ही बचा है बुक में, तो इसका मतलब 30,000 जो हमारा क्या है? डेप्रिसिएशन है ना। तो डेप्रिसिएशन लिखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 30,000 जाएगा वो, यहाँ पर लिखो बाय, क्योंकि हम इसे प्रोविजन अकाउंट को ट्रांसफर करने वाले हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन 70 से बुक वैल्यू कितनी हो गई है? 40,000। तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आएगा? कितना आएगा? 30,000। बाद में हम इसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को ट्रांसफर करेंगे। ओके, 30,000 अब 40,000 की जो मशीनरी है वो हमने वहां पर बेच दी है 25,000। क्या हुआ? लॉस हुआ या प्रॉफिट? हेलो, लॉस लॉस 15,000 15। तो वो कहाँ पर लेंगे हम? बाय, यहाँ पर लिखो बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसे लिखेंगे हम लॉस
लॉस है 15,000 का। ओके 15,000 और सेल कितना किया है, सेल है तो यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश, ब्रैकेट में लिखो सोल्ड। कितने को किया है सोल्ड हमने, 25,000। दोनों की टोटल करो पहले, ये जो बैलेंसेस है उसकी टोटल करो बेटा, कितना आता है देखो। ओपनिंग बैलेंस कितना आता है, 4,60,000. हाँ, और इसका यहाँ पर क्लोजिंग 6,10,000. 6,10,000। अभी क्लोज करो दोनों अकाउंट्स। 6,80,000. 6,80,000। 6,80,000. दोनों का डिफरेंस कितना आता है देखो, यहाँ पर 2,20,000. डिफरेंस आया है 2 लाख। 2,20,000. क्या हुआ इसका मतलब, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, परचेस Cash account purchases. अकाउंट ब्रैकेट में लिखेंगे हम Purchases. परचेसेस, ये हमारे अमाउंट 2,20,000। इसके एक एक ट्रांजेक्शन देखते हैं हम। ओके, सोल्ड का ट्रांजेक्शन कहाँ पर जाएगा, Source of funds. सोर्स ऑफ फंड हाँ सोर्स ऑफ फंड में लिखो, सेल ऑफ मशीनरी कितना है, 25,000। 25,000. बाद में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कहाँ पर जाएगा, प्रोविजन को जाएगा, ठीक है ना। टू क्या होगा उसका, मशीनरी अकाउंट है ना, कितना है 30,000। ट्रांसफर होने वाली है प्रोविजन को 30,000। और क्या है, ये एडजस्टेड प्रोविडेंट लॉस अकाउंट 15,000 है लॉस, ये कहाँ पर जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 15,000। के बाद में हाँ, ये तो बैलेंसेस लिए, लेकिन हमने अभी तक प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखा। अब ये लायबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, लायबिलिटी है, तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पर जाएगा इसका, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आएगा, ओपनिंग 1,50,000, जो 13 का है वो ओपनिंग, और उसके बाद में टू बैलेंस कैरी डाउन, कितना है 1,90,000, है ना। ये दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस लिए, इसको बाद में क्लोज करते हैं, पहले देखते हैं इसका कोई ट्रांजेक्शन बाकी है क्या। कैश परचेसेस बाकी है, परचेसेस कहाँ पर जाएगा, परचेस ऑफ मशीनरी, Application of funds. परचेस ऑफ है ना। हाँ 220, अब इसे क्लोज करो, कितना आता है देखो, देखो वहां पर कितना आता है 220।
20 से क्लोज होगा, 220 से, दोनों साइड को 20 लिखो। 2,20,000 जो बैलेंसिंग फिगर आएगी क्या कहेंगे आप उसे? बाय एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिखा तो चलेगा। क्या ये फिगर हमारी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर, कितना आएगा बैलेंस? देखो यहाँ पर 70,000। हेलो, 70,000। ये कहाँ पर जाएगा? ये बैलेंस है, इसके लिए हमने ये अकाउंट बनाया है। 70,000 कहाँ पर जाएगा? डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, depreciation on machinery, कितना है? 70,000। दोनों की भी हमने पूरे ट्रांजेक्शन्स ले लिए, अभी एंट्रीज ले लिए हमने दोनों को भी। नेक्स्ट 2 लाख, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट है 30,000 80,000, क्या हुआ है? परचेस ऑफ इन्वेस्टमेंट कहाँ पर जाएगा? 50,000 एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। इन्वेस्टमेंट कितना है? 30,000 था, 80,000 हो गया, इसका मतलब 50,000। आगे कौन सा है देखो? स्टॉक लिया है हमने, कैश लिया है, डेटर्स लिया है। अब डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स यहाँ पर रिड्यूस हो गया, इसका मतलब राइट ऑफ हो गया। कहाँ पर लेंगे ये? राइट ऑफ, राइट ऑफ डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स कितना है? 5,000 से रिड्यूस हुआ तो 5,000 आएगा। Yes. Okay. So that's all entries we have made. Remain one entry is remaining. कौन सी है? Dividend 15%. Dividend at the rate 15%. So write down here dividend. डिविडेंड है इक्विटी शेयर के ऊपर। इक्विटी शेयर कितना है प्रीवियस ईयर का? अमाउंट है 3 लाख। 3 लाख पर 50% लिखो। 3 लाख इंटू 15 अपॉन 100 कर देंगे उसे। ओके, 45,000 ये जाएगा और एक जगह पर हो जाएगा एप्लीकेशन ऑफ सॉरी डिविडेंड्स, डिविडेंड पेड एप्लीकेशन में जाएगा 45,000। सभी कर लिए। अभी आपको सिर्फ क्या करना है? बैलेंसिंग करना है। ओके, बैलेंसिंग करो और कल मुझे बताओ कि क्या आया था। मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट लेक्चर भी है। 2-3 मिनट में हो जाएगा, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर हमारा 10:30 बजे है। ऑलरेडी हमने टाइम बहुत पास किया है। ओके, बहुत ज्यादा टाइम लिया है। ओके सर, स्टॉप कर दो यहाँ पर फिर। सर 1 मिनट दिखाओ Yes, ना sir. नीचे। जल्दी जल्दी स्टेटमेंट है। नेक्स्ट। उसके बाद में फंड फ्रॉम ऑपरेशन है। आपको बैलेंसेस निकालनी है। हाँ? नहीं निकालो तो Yes. फिर इसके ऊपर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सर। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट है।
सर आगे वर्किंग्स एंड मशीनरी अकाउंट, provision for depreciation on machinery account, preference share Sir, capital next. account. ओके, ओके स्टॉप कर दो फिर यहाँ पर. यस सर हाँ, we'll meet tomorrow with new problem and last solution.